Hello everyone. In this video, I will explains the examples of this chapter, the coordinate and projections and the direction cosines. So, before we start, please subscribe my channel, and I will explain in both English and Hindi, uh, or you can say mix. Okay. So let's start first. uh, let clear some points like formulas वगैरह coordinates of a point in a space. Just just read the topics only, then I will go to the examples. Please don't take time. Okay, so first the coordinates of a point in space and the cylindrical coordinates. Cylindrical coordinates are x u cos theta, y is equals to u sine theta, phi. U is equals to root x square plus y square, and phi is equals to tan inverse y by x. And polar coordinates, that is spherical coordinates, and this formula x square plus y square plus z square is equals to r square, and tan phi is equals to y by x, and tan theta is equals to root x square plus y square up by z. Here is the diagram. Distance between the 2 points, PQ is equals to root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square, and distance of a point from origin, that is, then the one point will be 0 0 0, and then the distance formula will be root x square plus y square plus z square. And find the coordinates of a point which divides the join of a point P and Q in the ratio m1 and m2. These are the formula. X is equals to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, and y is equals to m1 and y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. And if these points divides externally, then this will be formula of coordinates of midpoint, then x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, and z1 plus z2 upon 2. And if we have to find the coordinates of the centroid, then this is the formula: x1 x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, and z1 plus z2 plus z3 upon 3. Okay, if we have to find the coordinates of the centroid of a tetrahedron, then these four coordinates and the centroids are x1 plus x2 plus x3 plus x4, and y1 plus y2 plus y3 plus y4 upon 4, and z1 plus z2 plus z3 z plus z4 upon 4. And the direction cosines and the direction ratios are the main formula is l square plus m square plus n square is equals to 1, and cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. These two formulas is the main, ये दोनों फॉर्मूला मेन्स हैं. और उसके बाद L is equals to plus minus a upon root a square plus b square plus c square. Similarly, we can also find L, m and n's. Okay, projection of a segment on the straight line. The main formula is like projection का हम लोग ऐसे ले सकते हैं. projection of अगर a b b c और m n का रहता है तो a और n का वो मिलके एंड में प्रोजेक्शन हो जाता है. तो ये कोई क्वेश्चंस में होगा तो मैं वहाँ पे समझा दूंगी, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो प्रोजेक्शन ऑफ अ जॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो उसका ये मेन फॉर्मूला है. अगर प्रोजेक्शन अगर पी क्यू ले रहे हैं कोई लाइन पे, तो ये हो जाएगा उसका प्रोजेक्शन x2 माइनस x1 l प्लस y2 माइनस y1 m एंड z2 माइनस z1 n. एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो यहाँ ये फॉर्मूला है. यहाँ cos थीटा इक्वल्स टू एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश, और वही साइन के फॉर्म में लिया गया है. ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. कॉस हो गया तो बहुत है, टैन के भी फॉर्म में ले लिया गया है. ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, कॉस हो गया तो बहुत काफ़ी है. अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो एल डैश प्लस एम डैश प्लस एन डैश 0 हो जाएगा, और पैरेलल होगी तो एल बाई एल डैश इज इक्वल्स टू एम बाई एम डैश एन बाई एन डैश होगा. तो पैरेलल और
परपेंडिकुलर और पैरेलल के दो कंडीशंस हो जाएंगे, ये इक्वेशन एक टाइप का मिल जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर कोई पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला है। एंड नाउ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थ्री परपेंडिकुलर लाइन्स, तो ये यहाँ पे रिलेशन है, दिस 6 रिलेशंस। अब नाउ वी हैव कम टू द एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स पे आ गए हैं, सो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल्स ट्रायंगल। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और राइट एंगल बोल रहा है, तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। तो दोनों 3 पॉइंट्स हैं, तो ए बी सी इन तीनों को मान लेते हैं। तो ए बी और बी सी, ए 3 पॉइंट इन तीनों को मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ओके, तो ए जैसे कि ये मान लीजिए ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल बोल रहा है तो हम लोग राइट ही ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये ए बी एंड सी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को आइसोसेलेस होगा तो दो साइड्स इक्वल होंगे, मान लीजिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ए बी और बी सी इक्वल होगा, नहीं तो ए बी सी और पहले ए सी, ये पहले तीनों हम लोग को ये तीनों हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग कॉन्क्लूजन पे कुछ पहुंचते हैं। तो देखिए ए बी ए सी और बी सी, ए बी ए सी और बी सी तीनों का डिस्टेंस वाला 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो देखिए ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, उसी पे ये तीनों फाइंड किया गया है। ओके, तो देखिए 3√2 3 ये 6 आया और 3√2, तो 3√2 इक्वल आया, तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो आइसोसेलेस हो गया। अब आइसोसेलेस हो गया यहाँ पे। अब राइट एंगल का, तो राइट एंगल का अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें, देखिए यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 3√2, बी सी भी दिया हुआ है 3√2 और ए सी यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो अगर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी यहाँ पे ये है इसका स्क्वायर प्लस ए बी का ये दिया है वैल्यू और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3√2, ये भी इतना ही है। और उसके बाद यहाँ पे 6 स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा तब देखते हैं 9 18, यहाँ पे भी 18 इज इक्वल्स टू 36। तो देखिए ये भी 36 है, ये भी 36 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ये राइट एंगल भी हो गया। तो कोई भी ट्रायंगल का अगर पता करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो पाइथागोरस अप्लाई कर देना बहुत ईजी रहता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर परपेंडिकुलर आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। तो ऐसे लाइन का के बीच का, ऐसे दो लाइन के बीच का हम लोग को एंगल फाइंड करना है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है इससे प्रोपोर्शनल है। तो एक इससे प्रोपोर्शनल है, एक इससे प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि हम लोग पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे तो एंगल बिटवीन द लाइन्स का हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं। एंगल बिटवीन द लाइन्स का फॉर्मूला एल डैश प्लस एम डैश प्लस एन डैश, ये फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग एल डैश और एम डैश और एन डैश फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे कॉस इनवर्स जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे रख के, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल एम एन है और एल डैश एम डैश एन डैश है उसको डायरेक्शन को साइन मान लिया है, 2 लाइन जो लाइन दिया गया। ओके, तो हम लोग बोला है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो L/1 और M/2 N/4 इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 1 इसका स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो 1/21 आएगा। तो L की वैल्यू 1/21 आई, √21, और M की वैल्यू 2/√21 और N की वैल्यू 4/√21। तो अब एक तरीके से मैंने हम लोग का पहले वाले का निकाल दिया LMN। अब L डैश M डैश N डैश निकालने के लिए ये वाला है दिया गया प्रोपोर्शनैलिटी, L डैश बाय -2, M डैश बाय 1 एंड N डैश बाय 5 है। तो इसका इज इक्वल्स टू करेंगे तो
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 1/√30 आ रहा है। तो एल डैश की वैल्यू भी यहाँ पे निकल गई -2/√30, यहाँ पे एम डैश की 1/√30 एंड एन डैश की 5/√30। तो यहाँ पे एल डैश, एल डैश, एम डैश और एन डैश की वैल्यू निकली। तो हम लोग अब कॉस थीटा करके वैल्यू रख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट ही रख दिया है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, सब बुक में थोड़ा शॉर्ट देता है। तो एल डैश प्लस एम डैश प्लस एन डैश, तो उसकी वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ करके। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, तो एल की वैल्यू कितनी आई थी, एल डैश है ना, तो एल की वैल्यू 1/√21 आई थी और एम की वैल्यू 2/√30 आई थी। और सॉरी, एल की वैल्यू इतनी आई थी, एल डैश की वैल्यू इतनी आई थी, एम की वैल्यू कितनी आई थी देख लेते हैं, मैं भूल गई हूँ, 2/4। तो एम की वैल्यू 2/√21 आई थी और एम डैश की वैल्यू 1/√30 आई थी और प्लस एन की वैल्यू 4/√21 आई थी और एन की वैल्यू 5 इतनी आई थी ना, और एन डैश की वैल्यू 5/√30 आई थी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 20, और यहाँ पे तीनों एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं 1/√21 × √30। ओके, तो उसी को जल्दी शॉर्ट में इसको प्लस करने पे यहाँ पे -2 आया था, यहाँ पे छूट गया है, मिस हो गया, तो ये कट जाएगा। तो 20/√21 × √30 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे और कितना आ जाएगा, 20/3√70। अभी यहाँ पे √70 कैसे है तो मेरे को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ। 21 × 30, तो यहाँ पे इसका हम लोग फैक्टराइज करके इसको छोटा करेंगे, 3 × 7 हुआ और ये 3 × 10 हुआ, 3 तो पेयर बन गया, तो 3 बाहर निकल गया और यहाँ पे √70 बच गया, तो 3√70 इसलिए यहाँ पे दिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ रही है, तो फिर थीटा की वैल्यू हम लोग को एंगल निकालना थीटा, तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स मैंने बोला था पहले कि कॉस को इन्वर्स इधर कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा ही हम लोग को मेन निकालना था, क्योंकि एंगल ही निकालना था मेन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो अब हम लोग को क्या करना है कि कौन से दो लाइन्स के बीच का एंगल हम लोग फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले तो क्या दिया था, प्रोपोर्शनैलिटी दिया था। यहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उन्हीं का 2 इक्वेशन दे दिया गया है। तो हम लोग को LMN की वैल्यू निकालेंगे। तो LMN की वैल्यू निकालने पे जो भी वैल्यू आएगी, तो उसके बाद तो देखिए, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया, तो LMN की वैल्यू निकालेंगे। तो LMN की वैल्यू यहाँ पे ना एक नहीं आएगी, L की भी 2 आएगी, M की भी 2 आएगी, N की भी 2 आएगी। तो हम लोग को 2 ठे आएगी। तो एक तरीके से तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से बोला है कि 2 लाइन्स बोला है, तो 2 लाइन ही, 2 ही कोई एंगल बिटवीन द लाइन्स, मतलब कि 2 लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो LMN की वैल्यू 2 आएगी, तो उससे हम लोग को 2 लाइन्स की LMN और एक L डैश M डैश N डैश मान लीजिए, ऐसे ही मान लेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद हम लोग जैसे कि हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो L डैश M डैश N डैश निकल जाएगा वैल्यू। तो उसके बाद फिर वही कॉस थीटा वाली जो फॉर्मूला थी उस पर रख देंगे, तो एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन्स हम लोग को निकल जाएगा। तो क्या किया है यहाँ पे, इक्वेशन देखते हैं, मतलब आज सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया, अब इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो दिखा देते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो वैल्यू है n की, तो n = क्या हो जाएगा, -L और -L + m। यहाँ पे ये आएगी इसकी n की वैल्यू। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है ना, हम लोग इस इक्वेशन में n की वैल्यू रख देंगे। तो -L + m यहाँ पे भी रख दिया है, यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे -L + m रख दिया है। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग का m - L और ब्रैकेट में m + 2L ये आ रहा है। तो m की वैल्यू एक L = 1 आ रही है और m की वैल्यू एक -2L आ रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग m की वैल्यू L रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले में, तो हम लोग का n - 2m आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर L है, यहाँ पे 2 ठे आई है, m की वैल्यू L और m की वैल्यू -2L। तो जो इक्वेशन है पहला L + m + n,
अगर इसमें हम लोग m की वैल्यू अगर l रखेंगे तब n की वैल्यू क्या आ रही है देखिए। तो अगर l की जगह हम लोग m रख देते हैं, देखिए तो m प्लस n इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू -2m हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है, n इज इक्वल्स टू -2। अगर हम लोग -2l रखते हैं इसी इक्वेशन में, यहाँ पे m की जगह, इस वाले में मैंने क्या लिखा है l की जगह रख दिया है, तो n इज इक्वल्स टू -2m। इसमें क्या करना है, हम लोग उल्टा रख देते हैं, m की जगह ही रख देते हैं l प्लस -2l प्लस n इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ यहाँ पे -l प्लस n इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू l। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू l आया। देखिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू -2m और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू l आया। देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाया है, साइड रखती हूँ, करने टाइम आप लोगों को भी समझ में आएगा। यहाँ पे n इक्वल्स टू -2m आया है, तो इसको सॉल्व यहाँ पे कैसे किया है देखिए, m और n इक्वल है और यहाँ पे हम लोग l m n ऊपर रख देते हैं, तो ये दोनों में 1 का रेशियो ही है। और लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू -2m दिया, n इक्वल्स टू -2m दिया हुआ है, तो अगर n अपॉन -2 है इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 है, तो यहाँ पे हम लोग l अपॉन 1 और m अपॉन 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के आधार पे m अपॉन 1 इज इक्वल्स टू n अपॉन -2, तो यहाँ पे वही चीज़ लिया n अपॉन -2। और मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी प्रोपोर्शनैलिटी वाले में किया था कि 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट करेंगे, तो यहाँ पे 1/√6 है, तो l की वैल्यू 1/√6, m की वैल्यू भी 1/√6 और n की वैल्यू -2 ऊपर चला जाएगा तो -2/√6 आ जाएगा। तो ये 3 डायरेक्शन को साइन मिल गया हम लोग को। अब क्या करना है कि जो डायरेक्शन को साइंस थे इसके निकल गए पहले के, फिर दूसरे के भी उसी तरीके से करेंगे तो ये आ जाएंगे। तो अब 2 हम लोग को डायरेक्शन को साइन मिल गया, तो उसके बाद क्या करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू l डैश प्लस mm डैश प्लस nn डैश इज इक्वल्स टू इतना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू अब -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 120 होता है। तो कॉस थीटा अगर 120 है तो कॉस कट गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 120 आ गया है। तो ये भी थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब फोर्थ पे आता है, फोर्थ तो बहुत लेंदी है बट इट्स ओके, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में जल्दी सोचूंगी समझा दूँ। If the edge of the rectangular parallelepiped are ABC and so that the angles between the 4 diagonals are given by cos theta minus this, तो हम लोग बोल रहा है कि अगर कोई पैरेललोपाइप्ड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है तो उसके एज अगर ABC हैं तो एंगल्स जो डायगोनल्स के बीच का एंगल्स है ये होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड लेंगे, तो पैरेललोपाइप्ड ले लिए, तो उसके बाद हम लोग को सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद उसके बाद क्या करना है, हम लोग को जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स के हम लोग डायरेक्शन को साइंस लेंगे। तो डायरेक्शंस को साइंस लेंगे डायगोनल्स के, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो डायरेक्शन को साइन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो लेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, फिर डायरेक्शन को साइन एक का निकाल दिए ये, उसके बाद ये दूसरा डायगोनल था, ये दूसरा डायगोनल हुआ, तो दोनों डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियो निकाल के फिर डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। उसी तरीके से देखिए 2 ठे अभी यहाँ पे निकाल दिए, अगर चारों का भी निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी 2 ठे भी हम लोग यहाँ पे निकाल के उसके बाद फिर डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, उसके बीच का एंगल्स, उसके बाद एंगल्स का फॉर्मूला रख के हम लोग एंगल निकाल देंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कॉर्नर्स को लेंगे क्या, ओके, कॉर्नर्स क्या लेंगे ये भी तो देखना है। तो ये तो ओरिजिन है तो 0 0 0, तो यहाँ पे O का 0 0 0 हो गया, यहाँ पे B का क्या हुआ, तो यहाँ पे ये B है, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है, Y एक्सिस, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला अब A का क्या होगा, तो ये X एक्सिस है तो X एक्सिस पे A और 0 0 हो गया, B हो गया, यहाँ पे C पे क्या है तो 0 0 और C हो गया, और उसके बाद PQ और RS का निकालेंगे। तो P यहाँ पे क्या देखिए
ये वाला तो पहले हम लोग एस का ले लेते हैं, ठीक है। पहले एस का करती हूँ। देखिए तो ये एस के कॉर्नर्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो एस के कॉर्नर्स यहाँ पे सी वाले पे जा रहे हैं और यहाँ पे बी वाले पे जा रहे हैं, तो सी और बी होगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आर का करते हैं, ठीक है। आर क्या है, सी और ए से जुड़ा हुआ है, तो सी और ए से जुड़ा तो ए 0 और सी ये हो गया। क्यू क्या है, ए और बी से जुड़ा हुआ, तो ए कॉमा बी कॉमा ये से हो जाए, पी क्यू आर हो गया, सॉरी क्यू आर एस हो गया। अब पी देखते हैं, तो पी क्या है, एस से भी जुड़ा, आर से भी जुड़ा और क्यू से भी, देखिए तीनों कोऑर्डिनेट से जुड़ा, तो ए बी और ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बता दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन को साइन ऑफ पी क्यू बोल रहा है, सॉरी ओ पी बोल रहा है, तो ओ पी है तो ओ का 0 0 0 और पी का ये है, तो इसका डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, ए -0 बी -0 सी -0, तो ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो है तो उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन को साइन भी निकाल देंगे, ओके। वैसे ही ए एस का भी यहाँ पे ए और एस है, तो ए का ये है और ये है, तो यह डायरेक्शन को साइन ऑफ ए एस, तो ए एस का डायरेक्शन को साइन कैसे निकलेगा, तो एस का क्या है 0 बी सी और ए का ये है, तो 0 माइनस ए करेंगे और बी माइनस ए करेंगे 0 करेंगे और सी -0 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -a बी और सी, तो ये डायरेक्शन को साइंस रेशियो हो जाएंगे और डायरेक्शन को साइंस -a/√a² + b² + c², ओके। वैसे ही बी आर और वैसे ही सी क्यू का भी हम लोग निकाल देंगे डायरेक्शन को साइंस। उसके बाद अब देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो मिल गया है दोनों का, तो डायरेक्शन रेशियो दोनों का मिल गया है, तो हम लोग एंगल क्या करते हैं, तो एंगल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सी ऑब्वियसली। देखिए तो यहाँ पे ऊपर एक का डायरेक्शन को साइन ये है a² + b² + c² और बी का a² + b² + c² और यहाँ पे एक सी का c/ तीसरा a² + b² + c², वैसे ही तीनों है। अब देखिए यहाँ पे ए एस का डायरेक्शन को साइन ये है, तो -a b और यहाँ पे c, तो यहाँ पे इसको -a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाला इससे अगर इसी को इससे इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो यहाँ पे -a² + b² + c² और यहाँ पे b² हो जाएगा, यहाँ पे c² हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करना रहता है फॉर्मूला के हिसाब से cos थीटा का l + mm + nn, तो यहाँ पे हम लोगों ने l mm और nn करके इसको ऐड कर देना है बस, तो यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद देखिए तो हम लोग यहाँ पे -a का है और इन दोनों में प्लस है, दूसरे जो डायगोनल्स हैं उसमें करेंगे तो हम लोग का ये माइनस में आ जाएगा और ये दोनों प्लस में आ जाएगा, और तीसरा अगर जो तीसरा पेयर ऑफ डायगोनल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो सिमिलरली करके हम लोग को लिखना पड़ेगा कि एंगल्स बिटवीन द अदर पेयर्स कैन बी फाउंड एंड द एंगल्स कैन बी दिस, यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो थीटा इज टू cos इनवर्स a² + -a² + -b² + -c² अपॉन a² + b² + c² होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद के एग्जांपल्स जो हैं मेरे आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स।